Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्ट्रेट लाइंस, विच इज द चैप्टर नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी. स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक पार्ट है दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन द क्लास 10th and 9th. Okay, in the coordinate geometry you studied about the distance formula, section formula, and many more things, that is the area of triangle. All these things you are study in the class 9th and 10th in the coordinate geometry. But what about straight line? And if we discuss about the straight line, तो straight line basically क्या है? Straight line is a topic which connect the coordinate geometry to the algebra. यदि हम बात करें तो अलजेब्रा का एक टॉपिक है क्लास 10th और 9th में, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम. जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को, देन दिस इज बेसिकली कॉल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री. And basically here we are going to start about the analytical geometry. In class 10th and 9th you already studied about linear equation. So linear equation in one variable हमने वहाँ स्टडी किया था. This is denoted by ax plus b is equal to 0. Linear equation in two variable, this is we denoted by ax plus by plus c is equal to 0. यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में क्या होता है? a not equal to 0. सेकेंड वाले केस में क्या है? a not equal to 0 and b is also not equal to 0. So this is the linear equation in two variable. This is the linear equation in one variable. The term linear जो हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर टर्म लीनियर भी यूज करते हैं, इवन दैट हम ये भी यूज करते हैं, दैट इज दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइंस. So basically these are equation of lines बोलो आप इसको, or we can say these are the straight line. So we can say this is the straight line in one variable and this is the straight line is two variable. So this is basically the straight line chapter. Okay, तो straight line कोई नया चैप्टर नहीं है, this is we already studied. हम इसकी जर्नल इक्वेशन भी स्टडी कर चुके हैं क्लास 9th और 10th में. बट यहाँ पर हायर क्लासेस में हम स्ट्रेट लाइन में क्या स्टडी करने वाले हैं? हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करेंगे अलजेब्रा से. ओके, और इसको अलजेब्रा से कनेक्ट करने में हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ अ लाइन, ये हमारा आज का टॉपिक होगा. एंड थ्रू द स्लोप ऑफ अ लाइन वी कनेक्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू द अलजेब्रा. व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? If we draw the coordinate axis, हमने यहाँ पर coordinate axis draw कर दी, x axis and y axis, and we draw a straight line. हमने यहाँ पर एक line draw कर दी. Okay, now this straight line make two angles with the x axis. One is theta and the second one is phi. तो ये straight line जो small l है, ये x axis के साथ दो angles form कर रही है, theta and phi. जो एंगल थीटा है, दिस इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज. एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल फॉर्म हो रहा है. ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज बेसिकली कॉल्ड inclination of a line. Inclination of a line. तो inclination of a line को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, if a line making an angle theta with the positive direction of x axis, or we can say in the anti-clockwise direction, then this is called inclination of a line. तो जब ये थीटा फॉर्म कर रहा है तो ये phi किसके इक्वल हो जाएगा? This phi will be equal to 180 minus theta. So this is the basic thing before to understand the concept of slope of a line. Now, what is the slope of a line? The slope of a line, अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे? ट्राइगोनोमेट्री से. So what is the slope of a line? The tangent of theta, or we can say the tan theta. Okay, the tangent of the angle theta
is called the slope of a line. The tangent of angle theta, that is tan theta. इस tan theta को हम क्या बोलते हैं? Slope of a line. This is basically denoted by small m. So slope of a line क्या हो गया हमारे पास? Slope of a line m is equal to tan theta और tangent of the inclination of a line, that is basically called slope of a line. This is the first important topic we study here. Okay, और यहाँ पर थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? Where theta between 180 to 0 degree. Where theta between 180 to 0 degree. Now we can see that जो x axis है, x axis के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 एंगल. So that's why we say that the slope of x axis is 0 degree. जो x axis का slope है वो कितना होगा? 0 होगा. That is slope. First important point हमने slope में find out किया, that is slope of x axis will be equal to 0. In the similar way, y axis x axis के साथ कितना एंगल बना रही है? y axis x axis के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. That is in the case of y axis theta is equal to 90 degree. So slope of y axis, that is basically equal to tan 90 degree, which is infinity. मतलब does not exist, or we cannot define the slope of a line with y axis, or we can say slope of y axis we cannot define. Okay, in the similar way जैसे x axis का slope 0 है, also you can see that हम x axis के पैरेलल जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, the lines parallel to x axis, ये x axis के साथ कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रही, मतलब 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है. और tan 0 डिग्री कितना होता है? 0. So that is the slope of a line which are parallel to the x axis having the slope 0. Okay, and we can also say the lines, the vertical lines which are parallel to y axis, ऐसी लाइन जो y axis के पैरेलल है, ये बेसिकली x axis के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री. तो इनका स्लोप कितना होगा? इनका स्लोप होगा इन्फिनिटी. ओके, सो दीज आर द कंसेप्ट, हम इनसे कोरिलेट कर सकते हैं, राइट. द नेक्स्ट कंसेप्ट, द पैरेलल लाइंस, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के स्लोप के बारे में क्या कंसेप्ट होगा यहाँ पर? देखिए, कोई सी भी दो लाइंस है, एनी टू लाइंस which are parallel, any two lines, let this is the line L1 और ये हमारे पास लाइन कौन सी है? L2. they both are parallel. तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. let angle alpha and angle beta, the corresponding angle they will be equal. okay, ये लाइन एंड एंगल चैप्टर से हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. when the both angle are equal, alpha and beta, then by the trigonometry we can say tan alpha is equal to tan beta, और tan alpha is equal to tan beta, that is m1 is equal to m2. m1 किसको शो कर रहा है? स्लोप ऑफ लाइन 1. और m2 किसको शो कर रहा है? स्लोप ऑफ लाइन 2. that is if two lines are parallel then their slopes are same. तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा? उनका स्लोप होगा सेम. they have the equal slope. so this is also the important concept we study. the next one, देखिए नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस. नाउ इफ वी विल डिस्कस स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बारे में बात करें, कोई भी दो लाइंस हैं, लेट दीज टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज L1, दैट इज L2. ओके, लेट दिस इज अल्फा, let this is beta. ओके, इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है? अल्फा, और ये कितना है? बीटा. अब इसमें हम यदि रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा. बीटा विल बी इक्वल टू 90 प्लस अल्फा. दैट इज tan बीटा विल बी इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा, एंड वी कैन से tan बीटा, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा. सो दिस इज माइनस कॉट अल्फा. ये कितना आ गया आपके पास? माइनस कॉट अल्फा आ गया, राइट. सो tan बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा.
अब देखिए लाइन L1 का स्लोप है M1 और लाइन L2 का स्लोप हमने M2 ले लिया। देखो स्लोप हमेशा किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, स्लोप हमेशा डिफाइन करते हैं टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल, राइट। तो यहाँ पर देखें tan बीटा का मतलब कितना हो गया, दैट इज M2 माइनस कॉट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan अल्फा और -1/tan अल्फा बेसिकली किसको शो कर रहा है, स्लोप ऑफ लाइन 1 को, दैट इज M1 को। यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज M1 M2 इज इक्वल टू -1, दैट इज व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप इज डिफाइंड बाय M1 M2 इज इक्वल टू -1, और वी कैन से कि किसी भी लाइन का स्लोप किसी दूसरी लाइन के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा विद द नेगेटिव साइन। सो दिस इज द रिलेशन वी फाइंड आउट बिटवीन टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो स्लोप का रिलेशन होता है दैट इज द M1 M2 is equal to -1, and when two lines are parallel then the relation between their slope is M1 is equal to M2. So this is the complete discussion we have done about the slope of a line. Now after that the next point is, ये तो basic points थे, हमने एक लाइन के स्लोप के बारे में डिस्कस किए with respect to the inclination of a line. But now the next important point, slope of a line when we have to given 2 points on the line a x1 y1 and b x2 y2, हमें लाइंस पे 2 पॉइंट्स गिवन है, देन इस लाइन का हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इन दैट केस वी जस्ट ड्रॉ द लाइन, लेट हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ इंक्लिनेशन एंगल नहीं दे रखा, हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं a and b, वी हैव टू गिवन द 2 पॉइंट्स a and b। इन दैट केस वी जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर, हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया इससे, दिस इज 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा, लेट ओके हमें यहाँ पॉइंट्स गिवन है, दिस इज द x2 y2 और ये हमें पॉइंट गिवन है x1 y1, ओके। सो यू कैन सी दैट ये पॉइंट M1 है, देन दिस इज y2 माइनस y1 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। नाउ व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखें यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन बेस, दैट इज x2 माइनस x1। और ये tan थीटा क्या है, दिस इज स्मॉल m, दैट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। सो जब भी हमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, देन द स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया हमारे पास, y2 माइनस y1 upon x2 minus x1. This is the slope of a line. Example first, जैसे मुझे किसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है और उस पर 2 पॉइंट गिवन है 3 2 एंड दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है 7 minus 2. दिस इज वी हैव टू गिवन द 2 पॉइंट्स और मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। कौन सी लाइन का, लाइन AB का। सो स्लोप ऑफ लाइन AB, so slope of line AB कितना हो जाएगा, y2 minus y1 that is minus 2 upon x2 minus x1 that is 7 minus 3. This is minus 4 upon 4, so this will be minus 1, that is यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई -1, ओके। tan थीटा की वैल्यू -1 आ गई, that is we can write down tan थीटा is equal to tan 135 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan थीटा, नेगेटिव, ओके। सो द थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और वी कैन से 3π/4। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन AB जब हमें A और B दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। सो इन दैट केस वी विल फाइंड द स्लोप बाय द फॉर्मूला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। So this is the next concept we study about the slope, और हमने इस पे बेस्ड एक बेसिक सा क्वेश्चंस करके इसको समझ लिया इस कंसेप्ट को कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट, ओके। so this is one of the question we have done. The next, angle between two lines.
how we will find angle between two lines. Very important topic also. Let we have two lines. हम यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दोनों के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है. लेट दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2 और इन दोनों के बीच हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है. लेट दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस इज एंगल बीटा. ये इनके इंक्लिनेशन एंगल है दोनों लाइंस के with the positive direction of x-axis. Now, by the relation, the beta we can write down in the form of theta plus alpha. Beta को कैसे लिख सकते हैं? Theta plus alpha. Let the slope of line 1 is m2 और line L2 का slope कितना है? m2 है. Now, tan beta किसके इक्वल हो जाएगा? Tan beta will be equal to, हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? हमें यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइन थीटा फाइंड आउट करना है. tan थीटा, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन या तो थीटा होगा या फिर फाई होगा. फाई दैट इज 180 माइनस थीटा. सो थीटा कैन बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फा, दैट इज tan थीटा. कैसे लिख देंगे हम? tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा. सो नाउ tan थीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा. ओके, और tan बीटा क्या है? tan बीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन 2. tan अल्फा क्या है? दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन 1. सो दिस इज, वी कैन राइट डाउन m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो ये तो हमने tan थीटा फाइंड आउट कर लिया. और tan 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? If we want to find out tan 180 minus theta, एक एंगल तो थीटा है और दूसरा एंगल यहाँ पर कितना है? 180 minus theta. So we can found that tan 180 minus theta, 180 minus theta मतलब कौन सा हो गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट. एंड दिस इज कैन बी रिटन एज माइनस tan theta, दैट इज माइनस ऑफ m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. So this is the obtuse angle और ये कौन सा हो गया? acute angle. दोनों को कंबाइन करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? tan theta is equal to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. This is the formula of angle between two lines. That is tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. मॉड्यूलस क्यों अप्लाई किया है? बिकॉज यहाँ पर हम थीटा क्या ले रहे हैं? थीटा इज द एक्यूट एंगल. और जब ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना होगा तो हम इसको नेगेटिवली ओपन कर देंगे, राइट? सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस. और इसी एंगल बिटवीन टू लाइन से हम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. कौन सा कंसेप्ट? फर्स्ट, व्हेन लाइंस आर पैरेलल. जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच एंगल क्या होगा? नेचुरल है, जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी उनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप कैसे भी ड्रॉ कर दें, व्हेन यू विल ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस देन एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज 0 डिग्री. और जैसे ही tan थीटा 0 होगा तो tan थीटा 0 होते ही हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? m1 विल बी इक्वल टू m2. So this is the condition of parallel lines जो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था. In the similar way, when lines are perpendicular, lines are perpendicular, that is L1 perpendicular to L2. So when lines are perpendicular, in that case theta हमारे पास कितना हो जाएगा? The theta will be 90 degree और tan 90 degree कितना हो जाएगा? Infinity. Tan theta, that is tan 90 degree infinity, that is 1 upon 0 and 1 upon 0, that is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, and we conclude that 1 plus m1 m2 will be equal to 0. So this is the condition of perpendicular जो थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था. So by the concept of angle between two lines we can easily find out the condition of parallel and condition of perpendicular. Very important concept. बहुत places पे ये use होगा, बहुत सारे questions में हम इस concept को use करेंगे, right? So very important concept. This is all also.
तो स्लोप ऑफ अ लाइन हमने स्टडी कर लिया। स्लोप ऑफ अ लाइन में हमने इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स लर्न किए, हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस लर्न किया। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन? तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और एक बेसिक एप्लीकेशन है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ अ लाइन, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। What is the meaning of collinearity of a points? कोई से भी पॉइंट्स है हमारे पास, लेट ए बी सी, हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कौन सी कंडीशन? दैट इज दे ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो इफ वी हैव टू गिवन ए बी सी आर कोलिनियर, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या फाइंड आउट करेंगे? ओके, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन वी कैन से जो ए बी का स्लोप है सेम वही किसका स्लोप होगा? BC का। दे बोथ हैविंग द सेम स्लोप। दिस इज द कंसेप्ट वी अप्लाई व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट इज स्लोप ऑफ AB will be equal to slope of BC, even that we can say that slope of AC. Okay, so this is the concept we will use in the collinearity of three or more points, right? इस पे बेस्ड भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हमें लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें ग्राफ गिवन है यहाँ पर। द ग्राफ वी हैव टू गिवन बिटवीन द टाइम एंड द डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस में ग्राफ गिवन है हमें। दिस इज अ लाइन वी हैव टू गिवन, और ये कुछ पॉइंट्स हमें गिवन है ए बी एंड सी, एंड दीज पॉइंट्स वी हैव टू गिवन 0 to 38, 0 to 38, एंड ये पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर TD। तो हमें यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। और ये हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सिंस वी नो दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यहाँ पर हम एक कोलिनियर का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे हम कोलिनियरिटी का कंसेप्ट। वी जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। In the concept of collinearity, we will say that slope of AB किसके इक्वल हो जाएगा? Slope of BC के। That is, slope of AB will be equal to slope of BC because they are collinear। जैसे हमें AB का स्लोप फाइंड आउट करना होगा, पॉइंट्स गिवन है y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 minus y1 that is 8 minus 2 upon x2 minus x1 that is 3 minus 0। This is the slope of AB, and slope of BC find out करें हम। This is B। Okay, so slope of BC कितना आ जाएगा? D minus 8 upon T minus 3। This is the slope of BC we have find out। Okay, 8 minus 2 that is 6, 6 upon 3, which will be equal to D minus 8 upon T minus 3। So this is twice of T minus 3, which will be equal to D minus 8, or 2T minus 6, which will be equal to D minus 8। Finally हमें इसको लिखना है, then how we can write down 2T is equal to D minus 2। This is the relation we find out between time and distance, और हम कह सकते हैं this is the equation of law of motion, or this is the equation between distance and time। Okay, so far we have find out this one also. You can write down this, D is equal to twice of T plus 1। Okay, so far here we understand about the आज के टॉपिक में हमने क्या लर्न किया। In today's topic we have learned about the slope of a line, the basic and very important concept of the straight line which connect the coordinate geometry to the algebra। In today's lecture we understand about the inclination of a line, और inclination of line के concept से हम slope of a line कैसे निकालेंगे, मतलब inclination angle का tangent find out करेंगे, that is tan theta। This is the slope of a line। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होगा, पैरेलल कंडीशन क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड हाउ वी apply the concept of collinearity of 3 or more points।
Okay, this is we understand in this lecture. In the next lecture, we start the problems based on exercise 10.1 of NCERT. Thanks to all of you, my dear friends.